Hello, good morning, children. How are you? Again, you are welcome. As I have given you the questions and answer of the previous chapter, you should note down them. And the chapter which is questions I have not given, so it is compulsory for you to do the answers by yourself and the given of only the given questions at the last of the chapter. And you would send me, then I will correct them. Got it? So now what we have discussed yesterday, that was the chapter Madam Rides the Bus. Now it is also a very important chapter in our class, the Sermon at Banaras. These are the new words and it is a story of Lord Buddha. Got it? ये भगवान बुद्ध की स्टोरी है. Got it? Lord Buddha is Buddhism. जैसे we are Hindu and Muslim and Sikh, Isai. In this way, one more religion is also, that is बौद्ध religion. और जो बौद्ध रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन से ही निकला है, हमारे देश से ही निकला है. एक राजा थे, उनका जो लड़का है वो बने थे महात्मा बुद्ध, है ना. सो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट महात्मा बुद्ध. गॉट इट? इन दिस चैप्टर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग योर क्लास. So be aware while listening this chapter. So the sermon at Banaras. Here in this chapter we will get more and more knowledge about Mahatma Buddha and his, we can say, teaching to other people. This is also very important for us. How he motivate the followers, how he we can say guide the followers, guide the other people. We will discuss in this chapter. So Gautam Buddha was born in 1563 BC और इसके बीच में 483 BC. began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम. यानी उसका जो बचपन का नाम था उनका, he was a prince, राजकुमार थे वो, and the name of महात्मा बुद्ध was सिद्धार्थ. what was the name? सिद्धार्थ. in northern India at 12, नॉर्दर्न इंडिया में उनका जन्म हुआ था. और at 12, जब वो 12 वर्ष के थे, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry princess. इन्हीं जब 12 साल के at 12 he was sent in a for to get education from a Hindu guru. Got it? And 4 years later he returned. और 4 साल के बाद में अपनी एजुकेशन करने के बाद वो आए home to marry a princess. एक प्रिंसेस से शादी हुई उनकी. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनके एक लड़का हुआ, यानी 4 year. फिर after getting education for 4 years, he returned back and he married with a princess and they got a son. And 12 years they lived a royal life. 12 साल, sorry, 10 years. They had a son and lived for 10 years as a befitted royalty. एक रॉयल की तरह उन्होंने जिंदगी जी 10 साल, अपनी लाइफ के 10 साल एक राजा महाराजाओं की तरह उन्होंने जिए. At about the age of 25, जब गौतम बुद्ध 25 years के हो गए, okay, the prince hereafter shielded from the suffering of the world. लोगों की जो दुख कष्ट, उनसे उनका परिचय हुआ. किसका? प्रिंस का. लोगों के दुख से, कष्ट से. While out hunting, chance upon a sick man. Chance upon का मतलब होता है came across by a chance. By chance he met when one day he was going for hunt. शिकार के लिए जब वो निकल रहे थे, who was going? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ. वो जब शिकार के लिए निकल रहे थे तो by chance he met a sick person. Then an aged man. फिर उसके बाद में एक एज्ड मैन. पहले मिले सिक पर्सन से, फिर मिले एक एज्ड मैन से. Then a funeral procession. फिर मिले, दाह संस्कार हो रहा था किसी का वहां पे. And finally monk. फिर एक भिक्षुक. जो भिक्षुक होता है ना, begging for alms, जो अपनी भिक्षुक जो होता है ना, सुबह सुबह मांगते हैं, अपने घर पे भी आ जाते हैं, वो अपनी दीक्षा ले रहे थे वहां पे. वो देखे, पहला देखा सिक मैन, उसके बाद में देखा एज्ड, फिर देखा फ्यूनरल, और उसके बाद में एक मॉन्क से मिले वो.
These sights so moved him. ये सब दृश्य, these scene had a great impact on him. उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इन सीन का. That he had once went out into the world to seek enlightenment. और फिर उन्होंने डिसाइड किया, तुरंत उन्होंने वर्ल्ड से निकल गए वो, और कौन से वर्ल्ड में चले गए? इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट. इनलाइट का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिकता की खोज में निकल पड़े वो. यानी महात्मा बुद्ध ने जब देखा एक सिक मैन, फिर एज्ड देखा, फिर फ्यूनरल देखा, फिर मॉन्क देखा, ये सब चीजें देखी उसने, तो जीवन का सार मिल गया उनको कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सब मोह माया है, बेटा है, पापा है, ये सब उनके दिमाग में आ गया, धन दौलत है, ये सब कुछ नहीं है, तुच्छ है ये. तो उन्होंने क्या किया? ही डिसाइडेड टू गेट अ स्पिरिचुअल नॉलेज. आध्यात्मिकता की खोज में निकल पड़े वो. कौन? महात्मा बुद्ध. कंसर्निंग द सोरो, और कौन चीजों की चिंता करने लग गए? कंसर्न का मतलब था टेंशन, वरी. द सोरो ही हैड विटनेस्ड, उस दुख के बारे में सोचते गए जो उन्होंने देखा. कैसा? सिक मैन, एज्ड, फिर मरना. He wandered for 7 years. 7 साल तक वो भटकते रहे, अपने बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. और फिर at last वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. 7 years he wandered here and there, and at last he sat down under a peepal tree where he vowed to stay. वहां पर उन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा की, टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. वहां तब तक रुकने की कोशिश की तब तक उनको आध्यात्मिकता नहीं मिल जाए. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और वहां पे बैठने के बाद में ओनली ही स्पेंट 7 days देयर. 7 साल घूमे, नहीं मिला कुछ. बट 7 days when he sit under the peepal tree he got enlightened. He renamed the tree to the Bodhi tree, tree of wisdom. उन्होंने उस पेड़ का नाम भी क्या बना दिया? बौद्ध ट्री, ट्री ऑफ विजडम. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और लोगों को अपनी टीचिंग देने लग गए, अपने उपदेश देने लग गए. सरमन का मतलब होता है पर्सन हु गिव्स द मैसेज, और उपदेश जो देता है ना, टीचिंग देता है, दैट इज. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध. उस टाइम पे वो क्या बन गए थे? बुद्ध बन गए थे, महात्मा बुद्ध. Preached his first sermon at the city of बनारस. उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया कहाँ? बनारस में, उत्तर प्रदेश में था ना बनारस. मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा. ये वो जगह है जहाँ पे हमारी पवित्र नदी गंगा बहती है, जहाँ पे लोग बात करते हैं, नहाते, अपने पाप धोते हैं. वहाँ पे बैठकर उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए. That sermon has been preserved as is given here. It reflects the Buddha wisdom about one inscrutable kind of suffering. ये जो भाषण था उसका, ये जो उपदेश था, ये बताता है कि उसने कैसा क्या उसने उसमें दिया. देखो, here this a lady, a lady named किसा गोतमी. What was the name of the lady? किसा गोतमी. उन्होंने वो किसा गोतमी को क्या सिखाया, क्या एक्सप्लेन किया, ये देखेंगे अपन. किसा गोतमी had an only son and he died in her. किसा गोतमी नामक एक लेडी थी. शी हैड ओनली सन एंड द सन वाज डाइड. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर सभी नेबर्स के पास जाने लग गई. आस्किंग देम फॉर मेडिसिन. उस मरे हुए बच्चे की मेडिसिन के लिए, जिंदा करने के लिए. एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंस. लोग उसको पागल समझने लग गए. बिल्कुल मरा हुआ कभी जिंदा नहीं हो सकता ना. Kisa Gotami was doing the same thing, and what they were calling they the mad women. The boy is dead. क्योंकि उनको पता था कि लड़का मर चुका है. At last, Kisa Gotami met a man who replied to her request. Kisa Gotami एक ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया. I cannot give the medicine for the. I cannot गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड. तुम्हें कोई मेडिसिन दी मतलब तुम्हें, टाइम तुम्हारा. मैं तुम्हारे बच्चे की कोई दवा तो नहीं दे सकता. बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, बट आई नो ए पर्सन हु कैन ट्रीट योर चाइल्ड, और हु कैन वी कैन से गाइड यू. एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट. देन द लेडी सेड, प्लीज टेल मी.
Who is that person? And the man replied, go to Sakya Muni, the Buddha. किसके पास जाओ? बुद्ध के पास, साक्य मुनि के पास जाओ. Kisa Gotami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Kisa Gotami just went near the prince, means Buddha, and she requested him, Lord, cure my boy, give me the medicine, मेरे बच्चे को ठीक करो, and give me the medicine. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. बुद्ध ने बोला कि मुझे एक सरसों के कुछ दाने चाहिए, बीज चाहिए मुझे. And when the girl in her joy promised to procure it, और वो लेडी खुश हो गई. She was happy. Only he demanding only mustard seeds. Then she admitted that I will give. The Buddha added, बुद्ध ने और बताया आगे, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child. लेकिन these mustard seeds belong to a house where nobody died. जहाँ पे कोई मरा नहीं हुआ. आज तक ऐसे घर से लेके आने तुम्हें कि वहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई. ऐसा घर तो है नहीं संसार में. कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो डेथ हुई है. तो बुद्ध ने कहा कि तुम ऐसे घर से लेके आओ मस्टर्ड सीड जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई हो. हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड. चाहे वो हस्बैंड मरा हो, चाहे कुछ भी मरा नहीं हो कोई भी. पुअर Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard. Kisa Gotami घर घर गई. She went to house, and the people of the house showing pity to her, दया दिखा रहे थे, and they were giving her mustard seed. And when the girl in her joy promised to and take it, but when she asked, did a son or daughter or a father or a mother die in your family? But when she was taking these mustard seed, she was also asking a question कि आपके घर में किस कोई माता पिता बच्चा या कोई की डेथ हुई है? They answered her, alas, the living are few but the dead are many. और वो लोग कहते हैं कि ओहो, जिंदा तो बहुत हैं, जिंदा तो कम हैं, मरने वाले बहुत हैं. यानी हर घर में डेथ हुई है. Do not remind us of our deepest grief. और बोलते हैं हमें हमारे दुख को याद मत दिलाओ. And there was no house but some beloved one had died in it. ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे कोई न कोई किसी न किसी का प्रिय मरा नहीं हो. Yes, absolutely right. Kisa Gotami became weary and hopeless. थक गई वो, hopeless हो गई. And sat down at the wayside watching the light of the city. And she sat on one place and she was watching the city light. As they flickered up and were extinguished again. जैसे कि वो एक बार जलती हैं फिर मुरझा जाती हैं, बुझ जाती हैं. जलना बुझना ऐसा चलता रहता लाइट्स का. At last the darkness of the night regained everywhere. और धीरे धीरे क्या हो गई? रात हो गई. Everywhere there is a darkness. And she considered the fate of man. तभी उसको पता चला इंसान का भाग्य. That their lives flickers up and extinguished again. कि जिंदगी इंसान की भी वैसी ही है जैसी लाइट्स हैं, कभी जलना कभी बुझना, ऐसे होती रहती है, कभी मरना कभी जीना. And she thought to herself, तभी उसने अपने आप से सोचा, how selfish I am in my grief. कह रही कि मैं मेरे दुख में कितनी सेल्फिश हो गई. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality. कह रही है कि डेथ जो है that is common for all. मृत्यु है वो सबके लिए कॉमन है. Yes. And that is the valley of desolation. Desolation का मतलब होता है वे एरिया which is filled with sorrow. वैली मतलब दुख के बारे में. There is a path that leads to him to immortality, who has surrendered all his selfishness. इस दुख भरे संसार में इंसान के लिए अमरता प्राप्त करने का एक ही साधन है, और वो क्या है? जिसने अपनी सेल्फिशनेस खो दी. जो सेल्फिश नहीं है, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं है,
जो कहते हैं ना कि मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, वही बंदा है जो इमोर्टलिटी प्राप्त कर सकता है। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। मॉर्टल का मतलब होता है जो बंदे मरते हैं, यानी हम लोग। द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। हम लोगों की जिंदगी है वो दुख दर्द से भरी हुई है। हम दुख दर्द से भरे हुए हैं जो मरने वाले हैं। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां पे जो बंदा जन्म लिया है वो मरेगा नहीं, पक्का मरेंगे। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ। बूढ़ा होने के बाद में मरना है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, क्योंकि लिविंग बींग्स का नेचर ही ऐसा है। एज ए राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। छोटे छोटे उगने वाले फ्रूट्स, उनकी शुरुआत की जिंदगी होती है खतरे में, लिविंग फॉलिंग, वो गिर ना जाएं। पकने वाले फ्रूट्स हैं, जब शुरू में होते हैं तो कहते हैं गिर ना जाएं। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसीलिए कह रहा है कि जो जन्म लेते हैं वो जब जन्म के साथ ही अपनी मौत लेके आते हैं। हु इज सेइंग दीज वर्ड्स? महात्मा बुद्ध। एज ऑल अर्थन वेशल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। कह रही कि अर्थन वेशल्स, ये सब बर्तन वगैरह हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब हम लोग, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो सब मिट्टी है। एक दिन इसको टूटना है। Who are saying this word? महात्मा बुद्ध। And being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise। चाहे वो young हो, चाहे वो adult हो, चाहे वो fools हो, चाहे वो wise हो, all fell into the power of death। हर किसी को मरना है। Everybody will die। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। All are subject to death। सभी मृत्यु का कारण है। Who is giving this sermon? महात्मा बुद्ध। To whom? ईसा गौतमी। Of those who ever overcome by death depart from life, a father cannot save his son। Of those who overcome by death, और वो बंदे जो डेथ को जीत चुके हैं, depart from life, और चले गए हैं। A father cannot save his son, nor kinsmen their relations। न बाप अपने बच्चे को बचा सकता है, न रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply। रिश्तेदार क्या करेंगे? रोएंगे। One by one mortals are carried off। एक के बाद एक जिसने जन्म लिया है वो मरेंगे। Like an ox that is led to slaughter। एक बैल, ऑक्स, जिसको भी मरना है, कत्ल होना है। The world is afflicted with death and decay। जुड़ा हुआ है हमारा संसार सफरिंग से, डिजीज और पेन से। Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of world। तो बुद्धिमान लोग हैं, उनको रोना नहीं चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा। मरना है, एक दिन मरेंगे। तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। Who is saying these words? महात्मा बुद्ध। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। कह रहे हैं कि रोने से और दुख मनाने से शांति नहीं मिलेगी। If we will weep, if we will grieve, then we will not get peace। महात्मा बुद्ध saying कि if we will weep, if we will sorrow, we will not get peace। On the contrary, इसके विपरीत, in the opposite of this, his pain will be the greater and his body will suffer। If we will weep, if we will feel sorrow, then what will happen? We will get more and more pain, we will get more and more disease, we will get more and more suffering। हम हमारे दुखों को रोएंगे, हमारी पेन को रोएंगे तो हमें और दुख होगा, और कष्ट होगा। He will make himself sick and pale। कमजोर हो जाएगा बंदा, ऐसा सोचेगा तो। Yet the dead are not saved by this lamentation। और इस दुख से, इस रोने धोने से डेड है वो कभी बच नहीं सकते, यानी मरे हुए कभी जिंदा नहीं हो सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of limitations। जिस बंदे को शांति प्राप्त करनी है
A person who want to get peace, he should be beyond the era of limitation. उसे दुख से दूर रहना पड़ेगा. लिमिटेशन का मतलब था रोना, दुख प्रकट करना, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो. एंड कंप्लेन भी नहीं करनी होगी उसे. एंड ग्रीफ, ही हु हैज ड्रॉन आउट द नैरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विद ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वह बंदा इन सब चीजों से निकल चुका, हैज बिकम कंपोज्ड विद ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिसे मानसिक शांति मिल गई. ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड. वह बंदा जो इन सभी दुखों से बाहर आ गया, वही सच्चा कहते हैं कि पर्सन है, और वही है जो अपने आप को शांति के साथ जी सकता है. सो माय डियर चिल्ड्रन, दैट वाज अ चैप्टर विच आई हैव कंप्लीटेड टुडे. शॉर्ट था, छोटा सा था. इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्नड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. द पर्सन हु इज बोरो, ही आल्सो brought with him his death also. So we should not weep. We should not should not have a sorrow when somebody died in our family, or maybe whatever we are losing in our life. So that is a very inspiring chapter, and I will give you the questions of this chapter. Okay, bye.